Namaskar and a very warm welcome in today's session. Today we are going to talk about dyeing and printing. Now, in our previous sessions, we had talked about dyeing, a brief introduction, and the different types of dyeing techniques. Today, also, we will continue with certain dyeing techniques and also we'll talk about printing. Dyeing and printing is from the program CAPMER, DAPMER, and DAPMERA. And the course code is BSc 006. The units are 13 and 14. Now, earlier when I had talked about dyeing and printing, I'll just give a brief introduction about what dyeing is actually. Dyeing क्या होता है? Dyeing मतलब किसी चीज़ को कलर करना, रंगना. तो जब भी हम कोई फैब्रिक होता है, टेक्सटाइल है, कपड़ा है, पेपर है, हम किसी भी चीज़ को डाई कर सकते हैं. Also, it can be also called as the process of imparting color to any surface basically. Now, जब dyeing होता है तो dyeing जो होता है it actually penetrates right till the fiber atomic level of the fiber and the fabric. While when it's printing, it remains on the surface. Now, why do we need to do dyeing? Dyeing can be done to, impart color to a fabric or to increase its aesthetic appeal. उसे और सुंदर बनाने के लिए हम उसे अलग अलग तरह के कलर से डाई करते हैं. Now, moving forward, continuing from the last session, we had talked about different types of dyeing techniques, and I'll continue with that only. So, another type of dyeing technique that will continue today is spray dyeing. For spray dye technique, fabric can be laid flat over a plain surface and dyes are sprayed or airbrushed onto the fabric. This technique offers more artistic and precise control of the dyeing application. So since we are spraying something on the fabric, what happens is that the dye generally doesn't completely penetrate inside the fiber, and it's a very common technique of kind of aesthetically to increase the aesthetic appeal of the fabric. We use this technique, and spray technique में होता क्या है कि we hide certain parts of the fabric, maybe using a paper or stencil or maybe a plastic cover, and उसके ऊपर कलर को डाई को स्प्रे किया जाता है. जब हम कलर को या डाई को स्प्रे करते हैं तो जहाँ पे फैब्रिक खुला है, खाली है, वहाँ पे वो कलर इम्पार्ट हो जाता है ऊपर. वाइल एट द अदर प्लेसेस वेयर वी हैव काइंड ऑफ बार्ड यूजिंग अ पेपर और द स्टेंसिल और समथिंग, वहाँ पे कलर पेनिट्रेट नहीं होता है और वो जगह खाली रह जाती है. इसे हम स्प्रे टेक्निक बोलते हैं. Another type of dyeing is your dip dyeing, or it's also called gradient dyeing. Dip dyeing or gradient dyeing is also known as ombre dyeing. It is an effect usually achieved by hand dipping fabric in dye so that it gradually goes from light to dark or sometimes from one color to another. When we use the word ombre, ombre is something जो कि एक ही कलर के different shades हमें देता है. So either we go from dark to light or light to dark. So vice versa. And if you see the picture on the screen, what happens here is dip कर रहे हैं. Dip का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को एक सॉल्यूशन में डुबा रहे हैं. तो हम सबसे पहले एक लाइट कलर का डाई हम उसमें पानी में मिक्स करते हैं. वी डिप द फैब्रिक जहाँ तक हमें हल्का कलर चाहिए होता है और फिर हम उसे निकाल देते हैं. देन वी वुड अगेन ऐड सर्टेन अमाउंट ऑफ डाई. देन अगेन वी डिप द फैब्रिक. सो क्या होता है कि नीचे का ऑलरेडी डाई किया हुआ है वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते हैं जिसके वजह से कि एक ग्रेडियंट इफेक्ट आता है. मतलब सबसे नीचे डार्क हो जाएगा बिकॉज हमने उसे कई बार डिप किया है, उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट रहेगा, उसके ऊपर और थोड़ा लाइट रहेगा, एंड जो सबसे लाइटेस्ट जो कलर होता है दैट रिमेन्स ऑन द टॉप. दिस इज कॉल्ड ombre effect, or we also call dip dyeing or gradient dyeing. Now, another very fascinating kind of dyeing technique is actually ice dyeing. यहाँ पे होता है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, कि आइस यूज हो रहा है. सो आइस डाइंग इज ए डाइंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग आइस ऑन टॉप ऑफ फैब्रिक एंड स्प्रिंकलिंग डाई पाउडर और डाई सॉल्यूशन ऑन द आइस. As the ice melts, it creates attractive and unpredictable patterns. Now, if you see the picture on the screen, what happens here is कि यहाँ पे बहुत सारा आइस रखा हुआ है और वो आइस के नीचे हमने एक कपड़ा डाल दिया है या टी शर्ट रख दिया है. सो व्हाट हैपन्स इज कि जब आइस के नीचे हमने कपड़ा रखा है और आइस के ऊपर हम अलग अलग कलर्स के या मे बी सिंगल कलर, मल्टी कलर, वॉट एवर अवर चॉइस इज, हम जब उसके ऊपर डाई स्प्रे करते हैं, डाई पाउडर को स्प्रे करते हैं, एंड स्लोली द कलर स्टार्ट स्प्रेडिंग एक्चुअली. एंड वाई डज इट हैपन सो? बिकॉज जो आइस होता है वो धीरे धीरे मेल्ट होता
रहा है. सो जब आइस मेल्ट हो रहा है तो डाई का जो पाउडर है वो भी आइस के साथ पानी जो बन रहा है उसमें डिजॉल्व होता है एंड इट स्टार्ट स्प्रेडिंग ऑन द फैब्रिक और द टी शर्ट और वट एवर मटीरियल वी हैव केप्ट बिलो. सो इसमें क्या होता है कि फिर जब डाई फैलता है, स्प्रेड होता है, तो वो एक नया इफ़ेक्ट देता है जो कि बहुत ही रैंडमली होता है, उसमें कोई पैटर्न नहीं फॉलो किया जाता है और इस तरह से आइस डाइंग की जाती है. Now coming to printing, when I talked about dyeing and printing, I mentioned कि dyeing जो होती है वो काफ़ी molecular level तक जाती है, बिल्कुल अंदर तक penetrate होता है, while जो printing होता है वो on the surface रहता है. So printing is defined as dyeing in a localized area in the form of patterns. It is the application of color according to a predetermined design. So as it's written here that it is in a localized area. हम जब एक फैब्रिक को ले रहे हैं और उसे एक डाई सॉल्यूशन में जो कि हमने डाई पाउडर है या कलर है, हमने उसे पानी में डाल के मिक्स किया है और हम फैब्रिक को उसमें बेसिकली इमर्स कर देते हैं, डुबा देते हैं. सो द फैब्रिक कंप्लीटली गेट्स इमर्स्ड इन द सॉल्यूशन एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड डाइंग. प्रिंटिंग में क्या होता है, इट्स वेरी लोकलाइज्ड मतलब इट रिमेन्स ऑन सर्टेन पार्ट्स ओनली, इट्स नॉट कम्प्लीटली डाइड. सो पूरे फैब्रिक को हम डिप करके या उसे डाई नहीं करते हैं. सर्टेन एरियाज हम डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन दैट वी वांट टू पुट, डिपेंडिंग ऑन द मोटिव दैट वी वुड लाइक टू एनहांस द फैब्रिक विथ. अकॉर्डिंगली वी चूज सर्टेन एरियाज, हम लोकलाइज करते हैं उसे और फिर हम उसे प्रिंट करते हैं. सो द प्रिंटिंग एक्चुअली इट रिमेन्स ऑन टॉप ऑफ द fabric. It doesn't deeply penetrate inside the fiber level. And there are certain steps when we talk about printing. One is preparation of fabric, preparation of print paste, printing of fabric, drying to prevent running of print paste, fixing of the dye by dry heat or steaming, rinsing to remove unfixed dye and print paste chemicals, and soaping. So basically all these steps are done to prepare the fabric. हम किसी भी फैब्रिक को randomly उठा के डाई या प्रिंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो भी रॉ फैब्रिक, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में बताया था कि जिसे हम ग्रे फैब्रिक भी बोलते हैं, वो उसके ऊपर काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, स्टार्च होता है. सो वी जस्ट कांट यूज़ दैट फैब्रिक एज इट इज़ फॉर डाइंग ऑन printing. So we have to prepare it. So for preparation we have to clean the fabric, we have to remove all the impurities, we have to even remove the starch also, because अगर ज़रा सा भी हल्का सा भी starch का प्रेजेंस है फैब्रिक पे और हम उसे डाई या प्रिंट कर रहे हैं तो बहुत पैची डाइंग होगी, या जब वो स्टार्च धुलने के बाद बाहर आएगा तो वहाँ की जगह खाली रह जाएगी. तो प्रिपरेशन ऑफ द फैब्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी वॉश इट, वी डाई इट, हम कई बार उसे स्कारिंग भी करते हैं, फिर प्रिंटिंग करते हैं. प्रिंट करेंगे तो फिर हम उसे ड्राई करने के लिए छोड़ेंगे, जैसे कि वॉट एवर कलर्स और डाई और पिगमेंट्स दैट वी हैव यूज्ड वो प्रॉपरली एकदम सूख जाए, ड्राई हो जाए. फिक्स करना होता है उस ड्राई को. फिक्स इज समथिंग कि हमने कलर तो डाल दिया लेकिन उसे पक्का करना होता है. सो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स बाय यूजिंग हीट और स्टीम और ब्लोवर्स वी एक्चुअली फिक्स दोज प्रिंटिंग पिगमेंट्स. देन वी फर्दर वॉश इट. वॉश करना, ऑफकोर्स हम कोई भी काम करते हैं किसी भी फैब्रिक पे या टेक्सटाइल पे तो उसके जितने इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसे निकाला जाता है. तो प्रिंटिंग के पहले जो होता है उसे हम प्री ट्रीटमेंट कहते हैं, और प्रिंटिंग के बाद जो होता है या डाइंग के बाद जो होता है उसे हम पोस्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं. एंड देन ऑफकोर्स लास्ट में हम सोपिंग करते हैं, मतलब कि वी विल वॉश इट यूजिंग मे बी अ डिटर्जेंट और सोप एंड देन वी विल क्लीन द फैब्रिक. नाउ द 4 मेन मेथड्स ऑफ टेक्सटाइल प्रिंटिंग आर ब्लॉक, roller, screen and heat transfer printing. In each of these methods, the application of the color is usually as a thickened paste followed by fixation, usually by steaming or heating, and then removal of excess color by washing. Now printing auxiliaries, जब भी हम प्रिंटिंग की बात करते हैं, प्रिंटिंग ऑक्सिलरी एक वर्ड आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिंटिंग में. सो व्हाट इज़ प्रिंटिंग ऑक्सिलरी? The chemicals that are added to printing paste that facilitate production of effective and quality printing are called printing auxiliaries. So basically we add a particular paste for the production and to increase the quality also of the printing paste. These are called printing auxiliaries. And there are certain styles of printing, different types के printing किए जाते हैं. The first one is direct style of printing. This is the most common style of printing.
The style involves directly applying the printing paste on the surface of the fabric. So as the name itself suggests कि direct style है, तो मतलब कोई भी हम इसमें इधर उधर एक्स्ट्रा चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, it's directly put on the fabric. So what happens here is कि कोई भी हम फैब्रिक लेते हैं और हमने फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया, वी विल टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग एज वेल, बट फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया, तो एक लकड़ी का ब्लॉक होता है और हम उसे प्रिंटिंग पिगमेंट में या पेस्ट में डिप करते हैं और फिर उसे हम फैब्रिक के ऊपर प्रिंट कर देते हैं. सो दैट्स अ डायरेक्ट वे ऑफ प्रिंटिंग स्टाइल, बिकॉज कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा मेथड इन्वॉल्व नहीं होता है. यू जस्ट टेक द इक्विपमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड, द टूल्स, एंड यू take the block, put it in the printing paste and put it directly on the fabric. So that's an example of direct printing style. Another is discharge style of printing. This technique used here is the removal of color. The plain dyed fabric is printed with a discharging or decoloring paste which removes the color in the printed areas. So नाम से ही हमें पता चल रहा है कि something is being discharged. Discharge मतलब something is being removed. So what happens here is कि the fabric is already in certain color. डायरेक्ट स्टाइल में जब हम एक ब्लॉक को प्रिंटिंग पेस्ट में डिप करके उसे हम प्रिंट कर रहे हैं, तो एक प्लेन एक सिंगल कलर का या मे बी मल्टी कलर का फैब्रिक है और हम उसमें एक नया कलर इम्पार्ट कर रहे हैं यूजिंग ब्लॉक्स में भी. Discharge में it's exactly the opposite of that. We are actually removing the color from there. So what happens here is कि there are certain chemicals, जैसे कि bleach होता है. bleach जो मार्केट में भी अवेलेबल होता है कई सारे ब्रांड्स के, हम उन्हें वाइटनिंग करने के लिए कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता है उसका, सफ़ेद कपड़ों में. लेकिन अगर हम ब्लीच को किसी भी और रंग के कपड़े में डालेंगे तो वो रंग वहाँ से निकल जाता है. सो बेसिकली इट गेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम देयर. सो ऐसे ही बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि कलर को निकालते हैं सरफेस से. तो अगर हमें एक फ्लावर का शेप डिस्चार्ज प्रिंटिंग के थ्रू बनाना है तो हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास फैब्रिक है, डाइड फैब्रिक है, और हम उसके ऊपर इन द शेप ऑफ ए फ्लावर यूजिंग मे बी डिफरेंट ब्लॉक्स और स्टेंसिल और सर्टन मोल्ड्स, हम उस शेप में वो केमिकल को इम्पार्ट करेंगे फैब्रिक के ऊपर और वो पूरा का पूरा कलर वहाँ से डिस्चार्ज कर देगा, रिमूव कर देगा. सो दैट्स द वे ऑफ डिस्चार्जिंग any fabric, any color from any fabric. Another thing is your resist style of printing. Resist मतलब हम किसी चीज़ को रोक रहे हैं, we are stopping something. So this style is created by resisting some areas of the yarn or fabric to take up the printing paste. The method of resisting can be physical, mechanical or chemical. So what happens in resist dyeing is that कि resist कर रहे हैं, जैसे कि आपका टाई एंड डाई हो गया, मतलब जो जिसे हम हिंदी में बांधनी या बंधेज भी बोलते हैं. तो अगर कोई फैब्रिक है और उसके चारों तरफ हम बहुत टाइटली रबर बैंड या सेफ्टी पिन या मोटे धागे से हम उसे रैप कर दें, बिल्कुल टाइटली बांध दें एक सर्टेन एरिया को, और हम उसे फिर डाई करें या उसके ऊपर हम प्रिंटिंग करें और फिर हम उसे निकाल दें. सो व्हाट विल हैपन इज दैट द एरिया वेयर द फैब्रिक इज बीइंग टाइड, वो एरिया डाई नहीं होता है, इसलिए हम उसे टाई एंड डाई बोलते हैं. मतलब फर्स्ट वी टाई इट एंड देन हम उसे डाई करते हैं एंड देन वी ओपन एंड ड्राई द फैब्रिक. सो वेयर एवर द फैब्रिक इज बीइंग टाइड, वहाँ पे कलर इम्पार्ट नहीं होता है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रेजिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग और डाइंग ऑल्सो, जहाँ पे कि हम उसे रेजिस्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ में इस जगह से पर्टिकुलरली कलर इम्पार्ट ना हो वहाँ पे. Another style of dyeing is your dyed style of printing. That is, in this style, dyes obtained from animal and vegetable sources are used, but in conjugation with a mordant. Hence, this is also known as modern style of printing. Now, these were the four main major techniques of printing. We will talk some of the methods of printing as well, कि किस तरह से या किन मेथड से हम ये चार स्टाइल्स को, टेक्निक्स को यूज़ करके वेरियस मेथड से हम प्रिंटिंग कर सकते हैं ऑन फैब्रिक्स और टेक्सटाइल्स. So in this one, the first one is block printing. What happens in block printing? As you can see on the screen, there are different types of blocks. कोई भी डिज़ाइन आप वुड लोगे और उसे कार्व करोगे. एंड जो ब्लॉक प्रिंटिंग है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिंटिंग डिज़ाइंस ऑन फैब्रिक बाई हैंड. It is a slow process and thus expensive. In India, it is still very popular method of printing. Steps जो होते हैं for block printing, what happens here is, first of all, the wood and the design is being selected. That particular design is being printed or somehow traced on the wooden pieces, and then the design is being carved out. So
आप पहले जो पिक्चर है अगर आप उसमें देखेंगे तो एक पेपर पे एक लायन का हेड बना हुआ है और उससे कार्बन पेपर यूज़ करके हम एक सरफेस पे उसे ट्रेस कर रहे हैं. वंस द ट्रेसिंग इज़ बीइंग डन, फिर उसे सर्टेन टूल्स यूज़ करके उसे कार्व किया जाता है. सो दैट्स हाउ अ वुडन ब्लॉक इज़ मेड. एंड वंस दिस ब्लॉक इज़ मेड, वंस द ब्लॉक इज़ रेडी, इसे हम पिगमेंट में डिप करते हैं और फिर फर्दर इसको यूज़ करके हम प्रिंट करते हैं. सो फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग वी नीड ह्यूज टेबल्स बिकॉज ब्लॉक प्रिंटिंग दुपट्टे पे किया जा सकता है, साड़ियों पे किया जा सकता है, रेडीमेड गारमेंट्स पे भी, अगर कोई स्टिच गारमेंट भी है उस पर भी कर सकते हैं. बट इट्स ऑलवेज बेटर कि जब थान में होता है, दैट इज़ टेक्सटाइल या फैब्रिक होता है, तभी हम उसे करें, जैसे कि कहीं पे कट ना हो उसके मोटिव. एंड द प्रिंटिंग पेस्ट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड एंड जो डाई होता है, जो कलर होता है, उसमें थिकनर हम यूज़ करते हैं. थिकनर होता है जैसे कि कोई भी गमी सब्सटेंस हो गया, फॉर एग्जांपल हम घर में ग्लू यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लू, वो हम अगर किसी डाई में या कलर में मिला दें तो वो थिकनर का काम करता है, बाइंडिंग एजेंट का भी काम करता है. एंड देन हम उसे एक सरफेस पे रखते हैं पिगमेंट को, वी डिप द ब्लॉक इन दैट एंड देन वी स्टार्ट प्रिंटिंग द फैब्रिक. Now, after block printing, another very common type of printing is roller printing. So it's very easy. Roller printing can be done mechanically, manually as well. And here what happens is, if you see on the screen, there are 3 rollers. So these rollers have engraved designs on them. These are generally metal rollers and they have engraved designs on top of them. So and the fabric is being passed through a conveyor belt below them. So जब fabric नीचे से white fabric pass होता है, बगल में जो भी रोलर्स होते हैं उनके बगल में ड्रम्स रखे हुए होते हैं, जिसमें कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर के पिगमेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे डाले हुए होते हैं. So once the roller starts moving and once the conveyor belt moves, the conveyor belt carries the fabric below the rollers and the roller starts moving and they pick the color from the color reservoir. So एक डिज़ाइन एक कलर पिकअप करेगा, दूसरा डिज़ाइन का रोलर दूसरा कलर पिकअप करेगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. एंड जैसे जैसे रोलर मूव करता है, जैसे जैसे कन्वेयर बेल्ट पे फैब्रिक मूव करता है, वैसे ही प्रिंटिंग कंटिन्यू होती जाती है इन वेरियस डिज़ाइंस, इन वेरियस कलर्स, वॉट एवर इज़ नीडेड. Another very common style of printing is screen printing. Screen printing हम घर पे भी कर सकते हैं. It's very easy actually. इसमें क्या होता है कि एक स्क्रीन हम बनाते हैं. सो बेसिकली हम जो ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं प्लास्टिक की, उसे हम ले सकते हैं. एंड व्हाट हैपन्स इज वी पुट वेरी माइन्यूट, वी पंच वेरी माइन्यूट होल्स depending on the design. So if we need a flower or a number written on that, we will punch that number or that particular motif or that design using very fine minute needles. एंड बहुत फाइन ये होल्स होते हैं जिससे कि सिर्फ और सिर्फ पतला डाई पिगमेंट ही पास हो सकता है. नाउ वी पुट दिस ऑन अ वुडन फ्रेम या मेटल फ्रेम भी हो सकता है एंड वी पुट द फैब्रिक बिलो दैट एंड फिर हम स्क्रीन के ऊपर डाई जो पिगमेंट है या हमारा जो कलर है वो हम उसके ऊपर पोर करते हैं. एंड देयर इज़ अ टूल कॉल्ड स्क्वीजी. सो स्क्वीजी क्या होता है कि इट हेल्प्स मूविंग द कलर ऑन द डिज़ाइन. सो व्हेन द पिगमेंट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द कलर गेट्स इम्पार्टेड ऑन द फैब्रिक. तो वो जो होल्स बने हुए थे जिस डिज़ाइन में हमने जो भी डिज़ाइन लिया था, वो उन होल्स के थ्रू पेनिट्रेट करता है द डाई पिगमेंट और द कलर एंड इट गोज़ ऑन द फैब्रिक. एंड जितनी बार हम 3-4 बार स्क्वीजी को ऊपर नीचे टू एंड फ्रो करेंगे, उतना ही बेटर उसका जो कलर है वो बार बार होल्स के थ्रू, पंचेस के थ्रू अंदर जाएगा और उतना बेटर कलर चढ़ेगा. तो एक बार में कभी ऐसा हो सकता है कि मे बी क्योंकि जो होल्स होते हैं पंच के वो बहुत माइन्यूट होते हैं, तो इट्स हाईली पॉसिबल कि किसी किसी होल में कलर ना गया हो. तो वी डू इट टू एंड फ्रो अ नंबर ऑफ टाइम्स सो दैट ऑल दी होल्स गेट कवर्ड एंड द कलर properly it passes through all the holes and it gets printed on the fabric. So that's screen printing. एंड स्क्रीन प्रिंटिंग भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि फ्लैट स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया. प्रिंटिंग इज़ डन ऑन अ प्रिंटिंग टेबल. फ्लैट स्क्रीन मतलब द स्क्रीन इज़ केप्ट फ्लैट ऑन अ टेबल. सो व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इन जनरल अबाउट स्क्रीन प्रिंटिंग, द सेम प्रोसेस इज़ यूज्ड हियर.
रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या होता है कि एज आई हैड एक्सप्लेन्ड अर्लियर अबाउट रोलर प्रिंटिंग, सिमिलर टेक्निक इज़ यूज्ड हियर एज वेल. तो यहाँ पे रोलर्स के ऊपर यू विल बी एबल टू सी दैट द डिज़ाइन इज़ ऑलरेडी बीन इनग्रेन्ड एंड कलर पास होता है, और जैसे जैसे फैब्रिक मूव करता है वैसे वैसे वो फैब्रिक के ऊपर प्रिंट करता जाता है. Now one of the very common techniques that is used for printing is stencil printing, और ये हम बहुत easily घर पे कर सकते हैं. In fact, I'm sure whoever is watching this session today, you all must have done it somehow. As kids, we all have done it. Screen में what happens is that the designs are drawn on the cardboard wood or metal, and then the design is cut out from it. The color is applied by brush, hand or spray gun. Each color requires a separate stencil. So stencil एक तरह का मोल्ड होता है, जो भी डिज़ाइन होती है या मोटिव होती है वो स्टेंसिल में कट आउट किया जाता है. सो फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ रोज़ फ्लावर, तो हम पेटल्स के शेप में या नीचे के स्टेम एंड लीव्स के शेप में उसे कट करके हॉलो बना देंगे. वी कीप इट ऑन पेपर, वी कीप इट ऑन फैब्रिक, एनीथिंग, एंड वी जस्ट पुट, इवन घर पे आप बैठ के सिंपल फैब्रिक कलर से भी ये कर सकते हैं कि आप उसको लेके यूजिंग मे बी अ पेंटिंग ब्रश, यू जस्ट टू एंड फ्रो आप उसे स्टेंसिल के ऊपर घुमाइए, तो वो जो शेप हमने बनाया है उसके बीच में कलर चला जाएगा, पिगमेंट चला जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा. सो स्टेंसिल प्रिंटिंग इज एज सिंपल एज दैट, एंड इट कैन बी डन यूजिंग दोज रोलर पेंट ब्रशेज एज वेल, जो कि हम पेंटिंग के लिए, होम पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं. एंड ये स्क्रीन पे जो आपके दिख रहा है ये काफ़ी बड़ा एक स्टेंसिल है प्रिंट में, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन इज देयर, एंड विद द यूज़ ऑफ पेंटिंग रोलर ब्रश वी कैन डू द स्टेंसिल प्रिंटिंग इन वेरियस वेज. नाउ एक और जो बहुत कॉमन टेक्निक होता है वो होता है ट्रांसफ़र प्रिंटिंग, जिसे कि हम सब्लिमेशन प्रिंटिंग भी बोलते हैं. द प्रिंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए स्पेशल पेपर ऑन टू द सर्फेस ऑफ द फैब्रिक. नाम से पता चल रहा है कि समथिंग इज गेटिंग ट्रांसफर्ड. सो ऑलरेडी पेपर के ऊपर डिज़ाइन बनी हुई होती है और उसे हम फैब्रिक पे रखते हैं. नाउ वो ट्रांसफ़र इट कैन बी डन विद द यूज़ ऑफ हीट, इट कैन बी डन विद द यूज़ ऑफ प्रेशर, एंड कभी कभी हम उसे आयन करके भी करते हैं. आप मार्केट में जाइए, बहुत सारे इस तरह के आजकल स्टिकर्स मिलते हैं जिसके ऊपर की डिज़ाइन बनी हुई होती है, और जब आप उसे किसी फैब्रिक पे रखेंगे और उसे आयन कर देंगे तो वो डिज़ाइन उस पर छप जाती है. इवन द सेम थिंग इज़ डन ऑन केक्स ऑल्सो. And as the print is initially done on the paper, the wastage of errors are considerably reduced. This is a very common thing because already we are using a paper, so chances of errors are very less. एंड वन ऑफ द लास्ट टाइप्स इज़ योर फॉयल प्रिंटिंग, जिसमें कि हम फॉयल प्रिंटिंग को यूज़, फॉयल मतलब मेटल के फॉइल्स को यूज़ करके इन वेरियस मेटालिक कलर्स, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, वॉट एवर इट इज़, वी डू द फॉयल प्रिंटिंग. इट इज़ अ स्पेशलिटी प्रिंटिंग प्रोसेस दैट अलाउज प्रिंटिंग ऑफ शाइनी पैटर्न विद द फॉयल ऑन द फैब्रिक अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो बेसिकली फॉयल होता है और उसे हम हाई टेम्परेचर या प्रेशर से फैब्रिक के ऊपर प्रिंट कर देते हैं. Now there are lots of types of printing defects as well जो कि इस प्रोसेस में होते हैं. स्कमिंग होता है, इट इज़ द इनसफिशिएंट क्लीनिंग ऑफ द अनवांटेड फिल्म. जो भी कलर एक्स्ट्रा प्रिंट होता है उसे अगर प्रॉपरली हम क्लीन नहीं करते हैं फैब्रिक सरफेस से, उसे हम स्कमिंग बोलते हैं. कलर लॉस होता है, ब्लीडिंग होती है. ब्लीडिंग में व्हाट हैपन्स इज दैट व्हेन यू वॉश द फैब्रिक, कलर ब्लीड्स, कलर रिमूव होता है और उसे हम कलर ब्लीडिंग बोलते हैं. क्रॉकिंग होता है, जबकि कोई भी सरफेस किसी दूसरे सरफेस से रब होती है तो क्रॉकिंग होती है, और क्रॉकोमीटर यूज़ करके हम उसे चेक कर सकते हैं कि फैब्रिक का क्रॉकिंग अच्छा है या बुरा है. वेरिएबल कलर डेप्थ भी हो जाते हैं, कहीं पे पैची डाइंग होता है, कहीं पे हल्का होता है, कहीं पे डार्क होता है, एंड सो ऑन. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग डिफेक्ट्स ऑल्सो दैट हैपन्स व्हेन वी डू द डाइंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस. एंड जब भी हम प्रिंटिंग करते हैं, डाइंग एक्चुअली साइमल्टेनियसली गोज विद दैट, बिकॉज हम दोनों जगह डाई पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं, हम कलर यूज़ कर रहे हैं. जो द बिगेस्ट डिफरेंस जो होता है डाइंग और प्रिंटिंग में, वो यही होता है कि डाइंग में द फैब्रिक इज़ कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द डाई सॉल्यूशन और द डाई बाथ, और उसके वजह से जो कलर होता है वो बिल्कुल फाइबर लेवल तक, बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट हो जाता है. प्रिंटिंग में क्या होता है कि क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लोकलाइज एरिया में ही की जाती है, तो इसलिए जो प्रिंटिंग पेस्ट होता है, जो पिगमेंट होता है, वो बिल्कुल सरफेस पे ही रिमेन होता है, और वो
बिल्कुल फाइबर लेवल तक पेनिट्रेट नहीं होता है। एंड सिंस इट्स लोकलाइज्ड, तो जो बेस कलर होता है दैट विल बी अ डिफरेंट कलर। जिस तरह का हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, प्रिंटिंग का डिज़ाइन है या मोटिव है या जो भी हम उसके ऊपर डाल रहे हैं, यूजिंग वेरियस टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग दैट वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट इन आवर सेशन टुडे, तो उस पर डिपेंड करता है कि बेस फैब्रिक पे किस कलर का हम प्रिंट डाल रहे हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स एंड टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ डाइंग एंड प्रिंटिंग, एंड वी विल मीट अगेन विथ अ न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार।